the high-level strategic cooperation council from defense, from energy, from education are all working in a very productive manner. We are aiming to increase our commercial relations to $5 billion, and in the field of energy, we are intensifying our joint activities in mining and also in precious stones, as well as natural gas and the oil sector. We are assessing our cooperation mechanisms. Within this framework, TPAO and the National Oil Company of Pakistan has signed an agreement in April of this year, and it is actually a very important step. And through this agreement, our companies will be able to drill for oil and natural gas in the offshore area of Pakistan, and this is going to be a preliminary example of our much more structural cooperation. The air connection between the countries is working in a productive manner, and together with that, we believe that the sea, land, and railway connections, which is important for our commercial relations, need to be further strengthened, and the technical activities for this preparation is ongoing. Another important and critical substance for us is the issue of education. The Turkish Marif Foundation has more than 80 schools in Pakistan, and hopefully this educational network is going to be extended further. I would like to specifically thank my distinguished brother and the government of Pakistan for the support they have rendered on this topic. Distinguished members of the press, both Turkey and Pakistan have taken important steps in the area of defense industry, and these are all issues that we're proud of. In the coming days, our cooperation for the defense industry is going to be further strengthened, which is really important for the security of our countries. It is a very strategic step, and in many areas there are projects that are ongoing in this particular area. Our countries have been fighting against terrorism for long years, and we have a strong will that we have exhibited, and we will continue to be supporting each other on this aspect. On this occasion, I would like to once again condemn the terrorist attack that took place in Khyber Pakhtunkhwa state on the 28th of June. The support we have received from Pakistan in our counterterrorism against FETÖ, PKK, YPG, and Daesh is also a very important support for us. Plus, the stance of brotherly Pakistan on the Northern Republic of Turkish Cyprus is very important for us, and we are grateful for the support they have rendered on this. In the coming days, I do hope that the relations between Pakistan and the TRNC will be developed further. Distinguished members of the press, the crisis that is exhibited and lived in the region is once again showing us that our solidarity and collaboration is really important. There are important steps that are needed to be taken for peace and stability in our country, and we do sincerely believe that we need to work closely with Pakistan. And of course, the trilateral consultation mechanism between Turkey, Pakistan, and Azerbaijan is an important platform for giving priority to diplomacy and to dialogue in our region. As our president has always mentioned, there is no winner in war and no loser in peace. This is the understanding that we have in Southern Asia. In April-May, there has been tension experienced between Pakistan and India, which we closely followed, and all the international society has seen the wisdom-oriented and calm attitude of Pakistan. This tension has been an important indicator that when two nuclear powers come face to face, that this is going to have very severe results. We have actually seen the ceasefire as an important decision, and in order to eliminate similar tensions, we believe that there has to be meaningful and efficient dialogue between the parties. As Turkey, we're always ready to support this so that there will be peace and there will not be any clashes. Distinguished members of the press, the attacks of Israel, which totally violates international law, has actually been condemned at the highest level by both parties. Israel attacks and aggressions are not just a risk for our region, but for the whole world. At this current status quo, we do hope that the ceasefire will be permanent. Unfortunately, the attacks
have actually shaken the trust felt towards the international regime on the prevention of nuclear expansions. And we have actually conveyed our messages to the parties for the restart of the nuclear negotiations. We're in constant contact with Pakistan, and both countries are contacting both parties of the conflict. Turkey believes that there has to be peaceful resolutions through negotiations, and we will continue to have a constructive contribution to this. The attacks of Israel against Iran is only attracting the attention of the whole world to a different sphere rather than the massacre in Gaza and the genocide in Gaza. Today, with my distinguished counterpart, we also discussed about the joint steps that we can take for our Palestinian brothers. On the table, we actually need to, you know that there is a plan about a ceasefire and uninterrupted humanitarian assistance, and we're in constant contact with the mediator countries, and we will continue to contribute to this process. Within this plan, the Israel attacks and aggression should end, and we hope that peace will be brought to Gaza and calm will be established. We will continue to support the Palestinian people and the Palestinian cause. Distinguished members of the press, with our Pakistani brothers, we will continue to have strong collaboration and coordination with our Pakistani brothers, and we do hope with the soul of solidarity and cooperation, we will take our relations to a further level. The friendly relations between Turkey and Pakistan will continue until eternity. And once again, I would like to thank my distinguished counterpart, Ishaq Dar, for his hospitality before you. Thank you very much. नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान इसहाक डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। मनाज़र आप देख सकते हैं पाकिस्तान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिससे खिताब करते हुए इसहाक डार की जानिब से कहा गया कि मुख्तलिफ़ शोबों में तुर्किया के तजुर्बे से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ऑयल और गैस के ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ऑयल और गैस में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। तुर्क वज़ीर दिफा याशार गुल का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक तुर्क वफ्द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात, इलाक़ाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और मुश्तरका मनसूबों पर बातचीत। एयर चीफ का पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात पर जोर। दोनों ममालिक में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और जदीद तरबियत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक फ़ज़ाइया और तुर्क वज़ारत दिफा के माबैन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। तुर्क वज़ीर दिफा की पाक फ़ज़ाइया की हालिया कारकर्दगी और पेशा वराना तैयारी की तारीफ। मुश्तरका जंगी मशकों और तरबियती प्रोग्रामों को वसअत देने पर जोर। ड्रोन टेक्नोलॉजी, एडवांस एविंक्स और पायलट एक्सचेंज प्रोग्राम पर ताउन जारी रखने का अज़म। तुर्क वज़ीर दिफा का पाकिस्तान एयरफोर्स की मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। ISPR की जानिब से यह बताया गया है, तुर्क वज़ीर दिफा का हालिया पाक भारत तनाज़ा में पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को खिराज तहसीन। और अब दीगर खबरों में आपको बताएं कि टिकटॉक अकाउंट बनाने पर बेटी को कत्ल करने वाला बाप गिरफ्तार। रावलपिंडी पुलिस ने मुलजिम को थाना रवात मुंतकिल कर दिया। मुलजिम से कत्ल के लिए इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल बरामद कर लिया गया है। रावलपिंडी पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे रखी थी। मकतूल ने बेटी को टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने का कहा था। इनकार पर मैट्रिक की तालिबा महक शहजादी को कत्ल किया गया। कातिल ने वारदात के बाद कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की भी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार ने जजेस की सीनियरिटी से मुतल्लिक 5 रुकनी बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी हैं। दोनों बार्स ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आइन और अदालती उसूलों के खिलाफ है और जजेस की सीनियरिटी तय करने का एक वाज़ेह मुसल्लिमा तरीक़ाकार पहले से मौजूद है। अपीलों में दरख्वास्त की गई है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले और इसके नतीजा में होने वाले तमाम इक़दामात को फैसले तक मुअत्तल किया जाए, जबकि सदर ममलिकत को जजेस की सीनियरिटी तय करने की हिदायत देना भी आइनी हदूद से बाहर है।
अपील गुजारों ने अदालत से इस्तदा की है कि मज़कूरा फैसला कल अदम करार दिया जाए। इससे मुतल्लिक आपको आगाह करें कि दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जजेस के सीनियरिटी तय करने का एक वाज़ेह मुसल्लिमा तरीकाकार पहले से मौजूद है। 5 रुकनी बेंच के फैसले और इसके नतीजा में होने वाले तमाम इकदाम को फैसले तक मुअत्तल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार ने जजेस की सीनियरिटी से मुतल्लिक 5 रुकनी फैसले को चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आइन और अदालती उसूलों के मुतसादिम है। ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मजीद आपको बताएं कि कहा गया है कि जजेस की सीनियरिटी तय करने के एक वाज़ेह मुसल्लिमा तरीकाकार पहले से मौजूद है। अपीलों में दरख्वास्त की गई है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले और इसके नतीजा में होने वाले तमाम इकदाम को फैसले तक मुअत्तल किया जाए, जबकि सदर मुमलिकत को जजेस की सीनियरिटी तय करने की हिदायत देना भी आइनी हदूद से बाहर है। अपील गुजारों ने अदालत से इस्तदा की है कि मज़कूरा फैसला कलअदम करार दिया जाए। महकमा लाइव स्टॉक ने मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड सामुराना पर गैर कानूनी स्लाटर हाउस पर छापा मारकर 11 मन मुजरे सेहत बकरे का गोश्त और 12 मन बड़ा गोश्त बरामद कर लिया। 28 मादा 4 नार जानवर ज़िबा, 18 कम उम्र मादा बकरियां बचा ली गई। पुलिस ने 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिया, जबकि 6 मौका से फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा स्लाटर कंट्रोल एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मुल्तान से यह खबर है जहां पर यह कार्रवाई की गई है। 11 मन मुजरे सेहत बकरे का गोश्त और 12 मन बड़ा गोश्त बरामद किया गया है। महकमा खुराक केपी में 7 अरब 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की माली बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट ने अरबों रुपए की माली बेकायदगियों का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में 6 अरब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की गंदम खरीदारी से मुतल्लिक बेकायदगियों की निशानदेही की गई है। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें कि ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में 6 अरब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की गंदम खरीदारी से मुतल्लिक बेकायदगियों की निशानदेही, गंदम की तरसील में ताखीर, जुर्माने न लगाने से भी खजाने को भारी नुकसान हुआ। महकमा खुराक केपी में 7 अरब 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की माली बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट ने अरबों रुपए की माली बेकायदगियों का भांडा फोड़ दिया है। रिपोर्ट में 6 अरब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की गंदम खरीदारी से मुतल्लिक बेकायदगियों की निशानदेही, गंदम की तरसील में ताखीर और जुर्माने न लगाने से भी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। महकमा खुराक केपी में 7 अरब 19 करोड़ की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट है। रिपोर्ट में 6 अरब 16 करोड़ रुपए से ज़ायद की गंदम खरीदारी से मुतल्लिक बेकायदियों की निशानदेही की गई है। गंदम की तरसील में तखीर और जुर्माने न लगाने से भी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। महकमा खुराक केपी में 7 अरब 19 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में खटमल, कीड़े मकोड़ों और लाल बेग की भरमार से मुसाफिर शदीद परेशान है। एसी कोचेस तक में गंदगी और बदबू का राज है, जबकि कमज़ोर जनरेटर के बायस पंखे बंद और गर्मी और हब्स में मुसाफिरों का बुरा हाल है। शहरियों का कहना है कि लाहौर, नारंग, सियालकोट सेक्शन पर चलने वाली ट्रेनों में सफाई और सहूलियात का फुकदान है। मुसाफिरों ने वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लाहौर, नारंग, सियालकोट सेक्शन पर ट्रेनों में सफाई और सहूलियात का फुकदान है। मुसाफिरों की जानिब से कहा गया है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में खटमल, कीड़े मकोड़ों और लाल बेग की भरमार है, मुसाफिर परेशान। लाहौर के इलाके लोहा मार्केट में बारिशी पानी में नहाते हुए बच्चा डूब गया। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने बारिशी पानी से लाश को निकाल लिया। डूबने वाले बच्चे की शिनाख्त ना हो सकी। रेस्क्यू टीम ने नामालूम बच्चे की लाश को नवाज शरीफ अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू इमरजेंसी टीम बच्चे के डूबने की इत्तला पर कार्रवाई की। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने बारिशी पानी से बच्चे की लाश को निकाल लिया है। लाहौर की लोहा मार्केट में बारिशी पानी में नहाते बच्चे के डूबने का यह वाकया है। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने बारिशी पानी से बच्चे की लाश को निकाल लिया है। मजीद आपको बताएं, लाहौर की लोहा मार्केट में बारिशी पानी में नहाते बच्चे के डूबने का ये वाकया है। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने बारिशी पानी से बच्चे की लाश को निकाल लिया है। लाहौर की लोहा मार्केट में बारिशी पानी में नहाते बच्चे के डूबने का वाकया है। रेस्क्यू इमरजेंसी टीम बच्चे के डूबने की इत्तला पर कार्रवाई की है और अब बच्चे की लाश को निकाल लिया गया है। मजीद आपको बताएं कि रेस्क्यू गोताखोर टीम ने बारिशी पानी से लाश को निकाल लिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला इजलास जारी। पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली नबील कबूल, वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और चेयरमैन CDA के रवैये पर कमेटी से वॉकआउट। मिनिस्टर साहब और चेयरमैन CDA का जो लहजा है वो पीपल्स पार्टी के मेंबर की जानिब बहुत तल्ख है। लगता है आप लोगों के पास खैरात में जो तो 2/3 अक्सरियत आ गई है, इससे आप ज़्यादा मगरूर हो गए हैं। हमने पहले भी आपको हुकूमत गिराकर दिखाई थी, अब भी हम कर सकते हैं। मैं वजीर मुमलिकत के लहजे और रवैये के खिलाफ कमेटी इजलास से बाइकआउट करता हूँ। नबील गबोल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला इजलास से उठकर चले गए। चेयरमैन CDA साहब, आपको याद दिला दूं, आप चीफ कमिश्नर हैं, लहजा दुरुस्त करें। चेयरमैन कमेटी और दीगर मेंबरान नबील गबोल को रोकते रहे।
इस मुतालिक आपको आगाह करें कि कमेटी में यह मामला सामने आया है। मजीद बात करेंगे जमान मुगल से। जमान, कहिएगा पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी और CDA हुकाम के दरमियान कमेटी में क्या कुछ मामला तय पाया? जी बिल्कुल, आज चेयरमैन कमेटी राजा खुर्रम नवाज की सदारत में ये इजलास हो रहा था, जिसमें चेयरमैन CDA को भी तलब किया गया था और आज CDA तरमीमी बिल भी पेश किया गया था और पीपल्स पार्टी के MNA नबील गबोल भी उसमें शरीक थे, जमशेद दस्ती भी शरीक थे, शाजिया मरी भी शरीक थी। और जैसे ही तलाल चौधरी जो वजीर ममलिकत हैं उनके और नबील गबोल के दरमियान बातचीत का अमल शुरू हुआ तो उसमें तलाल चौधरी जो है उनका तलख लहजा था, जिसको नबील गबोल की तरफ से पहले कोशिश की गई कि उसको दुरुस्त करवाया जाए और उन्होंने बारहा आगाह किया और चेयरमैन CDA के हवाले से भी उनका शिकवा था कि उनका लहजा जो है वो भी दुरुस्त नहीं है। तो नबील गबोल ने उस पर फिर तलाल चौधरी को याद दिलाया कि हमने पहले भी हुकूमत गिराई थी और अब भी गिरा सकते हैं। जो खैरात में आप लोगों को जो 2/3 अक्सरियत मिल गई है, इसकी वजह से आप ज्यादा मगरूर हो चुके हैं। और चेयरमैन CDA को मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि मैं आपको ये याद दिलाता चलूं कि आप चेयरमैन CDA होने के साथ साथ चीफ कमिश्नर भी हैं, लिहाजा आपको भी अपना लहजा जो है उसको दुरुस्त करना चाहिए। इस हवाले से नबील गबोल जो है उन्होंने कहा कि जी मैं दोनों के रवैये के खिलाफ जो है बाइकाट कर रहा हूं और एहतिजाजन मैं इजलास से जा रहा हूं और उनको रोकने की कोशिश की जाती रही लेकिन वो रुके नहीं और इजलास से उन्होंने बाइकाट किया है। जी।